1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 जॉन 5 चैप्टर, डैनियल 3 चैप्टर, 4 चैप्टर। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारी सहायता करो ये अध्याय पढ़ते वक्त। खुदा हमारा जीवन बदलता जाए, पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स होने के लिए सहायता करो। आपके वचन के आधार हमें लेने सिखाइए। आपका वचन हमारे अंदर का विश्वास बढ़ने में काम करे, हमारा जीवन फलता फूलता रहे और हमारे जीवन के अंदर के हर मसले तेरे वचन ही के द्वारा सॉल्व होते जाएं। हमारे आनंद शांति को बढ़ाइए, हमारे अंदर की सेहत को बढ़ाइए, हमारा यहाँ रहना आशीषित कीजिए, परमेश्वर के जनों के लिए लाभदायी बनाइए। हम सब यहाँ पर पिता आशीषित रहे और पिता हम तेरे राज्य के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु के नाम में वचनों को सिखाने की हम आपसे विनती करते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। ऑफ कीपिंग गॉड्स कमांडमेंट्स, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. And for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And there are three that bear witness in earth, and spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God, which he had testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Amen.
यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय पहले वचन से, संसार पर जय पाना। पहले वचन से, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखा, आपको इंग्रेडिएंट पकड़ लेना है यहाँ पर। ओके, इंग्रेडिएंट क्या है चमत्कार का? ओके, वो स्रोत क्या है चमत्कार का? वो लेसन क्या है? ओके, वो खासियत क्या है? चमत्कार का जड़ क्या है? ये विश्वास है। ओके, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है। ओके, तो आपको ओपनली यहाँ पे इतना खुल्लम खुल्ला दिया है। आपका उपवास, आपका प्रार्थना, आपका आराधना, आपका बाइबल रीडिंग, आपका टायत देना, आपका ऑफरिंग देना, आपका मेल मिलाप रखना, आपका सहभागिता होना, ये सब कुछ जो आप करते हैं वो सारा मिल के इकट्ठा होके आपके विश्वास को मजबूत करता है। ओके, ये आपका विश्वास को मजबूत करने वाले काम है, जो आप विश्वास ही के कारण फिर आप यीशु के जैसा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जी पाएंगे। ओके, ये सारा हिस्सा अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर का विश्वास मजबूत हो चुका है। ओके, अब आपको काम होना ही होना है आपके द्वारा। आमीन। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के विषय गवाही यही है, वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, देखा दोबारा आ गया 10 वचन, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते, जो बोला है, जो में कोई भी हो सकता है, कोई एनीबॉडी। ओके, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। ये सारे टोने जादू करने वाले लोग जो है, इनका विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारे अंदर जो काम कर रहा है वो सच में कर रहा है। उनको विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि इनके काम बिगाड़ा जा सकता है। ओके, इनके कामों के ऊपर उपद्रव किया जा सकता है, इनके प्रार्थनाएं रोकी जा सकती है, इनका लाइफ खत्म किया जा सकता है, इनके फ्यूचर भटका दिए जा सकते हैं। उनको ये सब पॉसिबल लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके विश्वास का नाप देखते हैं। ओके, आपके अंदर यीशु का ठिकाना कितना गहरा है, ये विश्वास उनको लिमिट बताता है। ओके, आपके अंदर का कितना गहरा आप आत्मिक हो, ये आपका विश्वास उसका वजन बताता है। ओके, ये वजन आपके विषय में दुष्ट आत्मा के जगत के लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरोध आने का, क्योंकि वो विश्वास का अल्प होना, छोटा विश्वास होना, ये उनके लिए साधारण रीति से आपको विरोध करना, आसानी से विरोध करना उनको पॉसिबल करता है, संभव करके देता है। ओके, आपके अंदर का विश्वास का दर्जा, आपका जानकारी दुष्ट जगत को मिलता है। ओके, आपके अंदर का विश्वास का दर्जा, आपका जानकारी दुष्ट जगत के अंदर एक्सप्लेन करके देता है कि ये आपके पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। समझ में आया? तो आपके अंदर का विश्वास, अगर आप नहीं मालूम है आपके अंदर का विश्वास का लेवल क्या है, कहाँ तक है, तो आप बाइबल रीडिंग करते रहो, आप प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, आप टायत देते रहो, ऑफरिंग्स देते रहो, थैंक्स गिविंग करते रहो, परमेश्वर के जनों के साथ संगति में, सहभागिता में रहो।
प्रभु भोज लेते रहो, आप जो आत्मिक काम है वो करते रहो। ये सब कुछ मिल के आपका विश्वास का पालन पोषण करता है। हालेलुया, वो आपके विश्वास का पालन पोषण करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं परमेश्वर से भेजा गया हूँ, कम से कम मेरे कामों को तो देखो, तुमको विश्वास हो जाएगा। हालेलुया, तो काम भी विश्वास को पालन पोषण करता है। ओके, आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर का ये एरिया ऑफ लाइफ टूटा पड़ा है, आप आत्मविश्वास पकड़ नहीं पा रहे। क्या मैं प्रार्थना करूँ तो ये हो जाएगा क्या मैं प्रार्थना करूँ तो मुझे मिलेगा क्या मैं प्रार्थना करूँ तो ये हल होगा क्या? आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप काम कीजिए, टायत दीजिए, ऑफरिंग दीजिए, थैंक्स गिविंग दीजिए, परमेश्वर का भजन गाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओके, आप किसी के बारे में बैर भावना मत रखिए, माफ़ी कीजिए, हर एक इंसान के लिए माफ़ी को रिलीज़ कर दीजिए। आप जो परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा पालन करते रहो, ये आपका विश्वास का पालन पोषण करेगा, मजबूत करेगा, आपके अंदर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आप कैसे यूज़ करते पता है? अगर काम सफल हुआ ना तो आपको लगता है हाँ कुछ है मैं, अगर काम सफल नहीं हुआ तो हम लोगों को ऐसे लगता है नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे अंदर। ओके, अगर बीमारी जल्दी ठीक हो गई तो हमको लगता है हाँ कुछ है। ओके, अगर बीमारी जल्दी ठीक नहीं हुई तो हमको लगता है गए काम से, हम में कुछ है ही नहीं। ओके, तो ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, ऐसा डगमगाने वाला अवस्था में कोई कुछ कहीं पहुंच नहीं पाता है, कहीं पर कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। ओके, स्थिर और स्थापित नहीं हो पाता है। आज यहाँ है तो कल आप गिरते गिरते, कल उठते उठते आज गिरते गिरते, कल उठते उठते आज गिरते गिरते। ओके, तो ये जो अस्थिरता है, परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में कहता है अस्थिर को ये नहीं समझना है कि वो कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसको प्राप्त करना है वो एक मन होना है, दुचित्ता नहीं होना है। चाहिए फिर बोलेगा नहीं चाहिए, फिर बोलेगा चाहिए, फिर बोलेगा नहीं चाहिए। ओके, आप पहले क्यों बोला चाहिए? क्योंकि आप पॉजिटिवली कोई आत्मा का प्रोविशन आपको मिल रहा था, आत्मा का अंदर आपका कुछ माइंड को कुछ मिल रहा था खाना, तो वो आप खा रहे थे और आपका पॉजिटिविटी बढ़ रहा था। ओके, आप हाँ में हाँ करते जा रहे थे और तुरंत उस आत्मा का पॉजिटिव आपको बनाते रखने का बंद हो गया, अब नेगेटिव स्टार्ट हो गया। तो अब आप नेगेटिव की सुन रहे, तो वही जवाब आपका भी ना में बदलने लगा है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये आत्मिक खेल है जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव में खिलाता रहता है। ओके, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में चलते रहेंगे तो आप दो इंसान के सामने हाँ करेंगे, तीसरे इंसान के सामने जाके बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओके, असर देखो, आपका हाँ और ना में असर क्यों आता है, ऐसा दुचित्ता क्यों हो जाते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर का माइंड आपको परेशानी में डालता है। ओके, इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस नहीं पकड़ पाते, आपका आत्मविश्वास आप पकड़ नहीं पाते हैं, और इसके लिए आप ये नहीं कह पाते हैं चाहे मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए तो भी वो मेरा परमेश्वर है। आप उस लेवल को पकड़ नहीं पाते हैं। समझ में आया? उस लेवल को पकड़ने का जरिया यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तू विश्वास करेगा तो पहाड़ को उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। ओके, उसने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया और वो दूसरे दिन पतरस ने जाते हुए देखा तो वो सूख गया था। ओके, उसने कबूल किया कि यीशु तूने जो बोला वैसा हो गया ये। तो यीशु ने बोला तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम को देखेगा, करेगा भी। ओके, तो विश्वास आपका एलिमेंट है, करेंसी है आपके लिए मिरेकल्स को करने का। ओके, विश्वास आपका करेंसी है परमेश्वर के शक्ति का उपयोग करने का। अगर आपके पास विश्वास की कमी है तो परमेश्वर की शक्ति आपको सहायता नहीं कर पाती है। अगर विश्वास की ज़्यादती है तो आप परमेश्वर के शक्ति का काम भी बहुत ज़्यादा करेंगे।
ओके और जब परमेश्वर के शक्ति का काम होना है तो आपके अंदर का विश्वास अगर ये करेंसी है तो उस करेंसी को आपने यूज़ करना है। अगर वो करेंसी है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे और आप सोच रहे काम हो जाएगा, तो वैसा नहीं है, आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर ये करेंसी के ऊपर अटैक्स लगते हैं, आपका विश्वास तोड़ने के ऊपर अटैक्स लगते हैं, आपका विश्वास कमज़ोर करने के ऊपर अटैक लगते हैं, आपका विश्वास कौन सी श्रृंखला पे खड़ा है, कौन से सीरीज़ के ऊपर खड़ा है, उस सीरीज़ को कटवाने के पीछे शैतान लग जाता है। समझ में आया? तो आपका विश्वास को कौन है जो बल दे रहा है, उसकी खोज में रहता है शैतान, फाड़ खाने के लिए। ओके आपके विश्वास के बल का कारण क्या है, उसकी खोज में रहता है शैतान। वो उसको खोज लेने का कोशिश करता है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट है और वो सिर्फ परमेश्वर के पास है, और शैतान परमेश्वर से वो रहस्य को जान नहीं सकता है। इसके लिए आपका विश्वास सेफ है। आमीन। तो आपका मिरेकल आपके पास है, विश्वास की करेंसी को यूज़ करो। ओके हमारा हर चीज़ हमारे पास है, क्योंकि शक्ति से है, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा अगर सब कुछ होना है तो आपके लिए विश्वास ही वो बात है जो परमेश्वर के आत्मा का काम दिखाएगा आपके अंदर। ओके वो आत्मा के काम को दिखाएगा आपके अंदर, वो विश्वास करेंसी है आपका। ओके और यही कारण से हमारे लिए ये बहुत बड़ी जंग है कि हम विश्वास में स्थिर रहना है। और पौलुस के बारे में भी लिखा है कि वो विश्वास की दौड़ जीता, वो विश्वास के दौड़ को अच्छे तरह से उस लड़ाई को उसने जीता। ओके ये विश्वास की दौड़ है, और सारी जंग जो शैतान का हमारा विरोध करने और हम शैतान का विरोध करना, ये सब विश्वास का ही फाइटिंग है। ये फाइट विश्वास ही के लिए है। ओके तो इस प्रकार से विश्वास हमारे अंदर का हमारे जीत का झंडा दिखाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो आपका जीत इक्वल टू आपका विश्वास, आपका विश्वास इक्वल टू आपकी जीत। क्या विश्वास? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपको संदेह नहीं होना चाहिए, आपके अंदर संदेह नहीं है, आपको मालूम है कि परमेश्वर का पुत्र है। आप बिल्कुल ठोक ठोक के लोगों को बोल सकते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब मिरेकल लेने का समय आएगा तो मिरेकल आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आपका ये जो ठोक ठोक के बताने का विश्वास जो है, इसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी है। ओके जब आप किसी को चंगा करने के लिए हाथ रखते हैं तो आपको थोड़ा डर रहता है, क्या पता ये सच में होगा कि नहीं। तो ये सोच आपको मार डालती है। समझ में आया? और यही बात अगर आपके अंदर किसी ने अभिषेक का तेल लाके दे दिया और आपको बोला ये तेल आप लगाओ, आप चंगे हो जाओगे, तो आपका एनर्जी, पॉजिटिविटी जो है, आपका सोच जो है वो बल पकड़ लेता है, जो आपको बताता है ये तेल जरिया बन जाता है आपका पॉजिटिव सोच बढ़ाने का। ओके ये तेल आपको सोच की भी ज़रूरत नहीं है, ये तेल के अंदर आराम से आप अपने आप को रख देते हैं, आराम से रख देते हैं, आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। अगर किसी दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो चंगा हो जाएगा, आप आराम से उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप अपने अंदर का ये विश्वास का दर्जा ठीक करना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? तो ये एरिया ऑफ लाइफ है कि आप खुद अपने देखभाल नहीं कर पाते हैं, आप खुद अपने ऊपर मिनिस्ट्री नहीं कर पाते हैं, आप खुद अपने ऊपर सेवा करना चाहिए। आपके अंदर का स्रोत विश्वास का जरिया ही पूरा कर सकता है।
ओके तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरिया ऑफ लाइफ अगर आप दुरुस्त नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको कहा एएनएम मिनिस्ट्री के पास जाओ और ले हैंड कर लो और आप ठीक हो जाओगे, तो आप तुरंत निकल जाओगे वहाँ पर। अगर इंसान मरने पर है तो आप तुरंत उठा के भागोगे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री में। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या काम है? ऐसा क्या हो गया कि आपको उधर जाना सही लगा, लेकिन आप खुद के अंदर का विश्वास का परख नहीं किया? तो क्या ये वचन झूठ है? आप खुद पूछो अपने आप को, क्या ये वचन झूठ है कि ये कह रहा है कि ये विश्वास का काम है मिरेकल्स करना, ये विश्वास का काम है जीतना? हाँ, तो वो लोग जिता रहे हैं आपको, आप लोग क्या कर रहे हैं? है ना, वो लोग आपको जिता रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, वो आपको मना नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ऊपर वो उनके ताकत, उनके अंदर का विश्वास का ताकत आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका लाभ ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आप अपने अंदर से क्या कर रहे हैं? आप भी तो जीतने के लिए बुलाए गए हैं, है ना? ये बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं ना, तो इस जीतने का अवसर को आपको डैमेजेस है, ये अवसर में आपके अंदर कोई दुरुस्ती का काम होना ज़रूरी है, तो वो काम आपको करना ज़रूरी है ताकि आप दूसरों के लिए लाभदायी बने। आमेन। तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जब आपका ऐसा कोई बोल देता है ले हैंड करो तो हो जाएगा, तो आप आसान मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला विश्वास को बढ़ाओ, तो आपको लगता है एक बहुत 40 साल का जंगल मुझे काटने के लिए बोल रहे, ओके, चक्कर काटने के लिए बोल रहे। तो डेफिनेट है अगर ऐसा कहा जाए कि अब भी तुम चंगे हो गए, तो आपको मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिखता नहीं है ना। तो आपके अंदर का मैटर करता है, आपका अंदर का माहौल मैटर करता है, आपके अंदर का माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे बातों को ले नहीं पाएंगे तो ओके, ऐसे तरह से आप वचन कह रहा है तुम जीतने के लिए बुलाए गए हो और आप उसको मान नहीं रहे हो, लेकिन ले हैंड करके आप जीत जाओगे तो आप मान लेते हैं। आपका अंदर का एरिया डैमेज्ड है। समझ में आया? ले हैंड निश्चित जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन खुद के बारे में भी तो सोचो। ओके, खुद कहाँ है आप और हम कहाँ हैं? वो डैमेज के अंदर हम कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओके, वो डैमेज के अंदर हम रुक नहीं पाएंगे। जैसे प्रॉफिट टीबी जोशुआ एक निकल जाते हैं तो उनका असर हमारे ऊपर से ख़त्म होने लगता है। ओके, तो वैसे ही हमारे जीवन के ऊपर कर रहे लोग काम आज है, कल अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? है ना। तो उनके होते हुए ही आपने क्या करना है? विश्वास के डैमेजेस को हटाने की काम करना है। समझ में आया? आपने बल पकड़ना है ताकि आप उनके लिए इर्द गिर्द में खंबे बनकर खड़े हो सके, विश्वास के खंबे बनकर खड़े हो सके। आमेन। आपको ध्यान रखना है, आपकी ज़रूरत है ऐसे मिनिस्ट्रीज के लोगों को, और आप खुद विश्वास में कमज़ोर पड़े रहेंगे, सिर्फ उनका ही लाभ लेते रहेंगे, तो उनके लिए लाभदायी नहीं हो पाएंगे हम लोग। ओके, हमको उनके लिए लाभदायी होना है ताकि उनकी मिनिस्ट्री बरकरार रहे हमारे कंट्रीज़ में, है ना। तो हमारे अंदर का विश्वास का ज़रिया ठीक करने का आज परमेश्वर हमको ये रास्ता दे रहा है, हमको पकड़ लेना है ये रास्ते को। ठीक है। यीशु मसीह के विषय गवाही 6 वचन से आगे, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। अब यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो पानी के द्वारा भी आया, लहू के द्वारा भी आया, यानी उसने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा पानी में बपतिस्मा भी लिया और लहू के द्वारा वो अपने अंदर शुद्ध भी हुआ। बलिदान के वक्त में उसने अपने आप को भी शुद्ध किया लहू के बलिदान में। समझ में आया? और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है।
जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अनंत जीवन मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसको फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो क्या ये वचन अभी झूठा है? आप सोच कर देखिए क्या लिखा है, उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। और वो पाप भी नहीं करता है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब आपके अंदर का विश्वास ये वचन को आपके अंदर सच्चा करेगा। आमीन। आपके अंदर का विश्वास ये वचन को आपके अंदर जय दिलाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य नहीं है हम सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हम 20 वचन एक बार और पढ़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मुर्दों से बचाए रखो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे विश्वास की रखवाली कीजिए। देखा, पतरस के बारे में भी याद करो। पतरस के बारे में यीशु मसीह ने कहा, शैतान तुझे फटकारने के लिए मांग रहा है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। अब देखो, प्रार्थना ये नहीं की कि शैतान तो उसको फटकार मत। उसने प्रार्थना ये की कि उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। आमीन। तो आप यीशु को देखो, यीशु का चेला है पतरस, ओके। और फिर भी यीशु का चेला क्या सहन करने के लिए जा रहा है? शैतान के फटकार को, ओके। शैतान का फटकार और प्रार्थना दोनों अलग अलग जा रहे। शैतान का फटकारना एक तरफ है और यीशु की प्रार्थना के शब्द कुछ और ही मांग रहे। यीशु की प्रार्थना के शब्द ये मांग रहे, विश्वास टूटने मत दे उसका, यानी फटकार को निकाल, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है उसका विश्वास टूटने मत दे। हालेलुया। तो अब ध्यान रखो, कुछ कुछ समय हमारा ऐसा रहता है कि हमारा विश्वास का परीक्षा हो जाता है, ठीक है। तो विश्वास टूटने नहीं देना है, ये बात ध्यान रखो। थैंक यू आबा फादर गॉड, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के आधार से हमारे समझ, ज्ञान, बुद्धि को विश्वास में परिपक्व कर और इतना महान हमें लाभदायी बना। हमारे विश्वास के अंदर से हम ANM मिनिस्ट्री के लिए लाभदायी बने। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम, PBSM मिनिस्ट्री, इन लोगों के लिए यूबर्ट एंजल मिनिस्ट्रीज,
और पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के लिए लाभदायी बनते जाए खुदा परमेश्वर, उनके विश्वास के अंदर पिता परमेश्वर हम अपने हिस्से भी रखना शुरू करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा भी उनको पिता फायदा हो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ पवित्र आत्मा, विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। यीशु नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।